Hello, dear students, and finally, we are here to end up with the lesson with the small two topics which are left out. Okay, so we have done already the types of price elasticity. Then we had covered up with the last time we had covered up with the methods of measuring elasticity of demand. Now, this is what we are going to do is factors influencing the elasticity of demand. ऐसे क्या factors हैं जिनकी वजह से elasticity of demand जो है existence में आता है, it depends upon. Okay, so let's see now. Elasticity of demand depends upon several factors which are as follows. First one is the nature of commodity. Like किस तरह की commodity आप use कर रहे हैं, whether it is for your necessities, it is for your comforts or for luxury goods, then what will happen? By nature, we can classify commodities as firstly necessities, comforts and luxury goods. ठीक है, necessaries, comforts and luxury goods. Demand for necessaries like जिसे हम daily use कर रहे हैं, like food grains, medicines, textbooks, etc. It is relatively inelastic. Necessaries के लिए क्या है, डिमांड जो है relatively inelastic है. And for comforts and luxury goods like cars, perfumes, furnitures, etc. demand is relatively elastic. तो दो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है. नेसेसरीज के लिए आपकी डिमांड क्या होगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी, मतलब यू कैन नॉट अवॉइड मेकिंग यूज ऑफ इट एट एनी कॉस्ट. एंड देन फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरीज यू कैन एटलीस्ट पोस्टपोन इट फॉर फ्यूचर यूज. आप आगे चल करके कभी भी यूज कर सकते हो. तो यर यू विल हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ओके, relatively inelastic for necessaries and relatively elastic for comforts and luxury goods. Another factor that influence elasticity of demand is availability of substitutes. कितने substitutes available है in the market for one particular commodity. So demand for a commodity will be more elastic. ज़्यादा होगा अगर if its close substitutes are available in the market. ठीक है, अगर उसके ज़्यादा सब्सिट्यूट्स अवेलेबल है इन द मार्केट तो उसका डिमांड जो है मोर इलास्टिक होगा. फॉर एग्जांपल लेमन जूस, शुगर केन जूस एक्सेट्रा. ठीक है, बट कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्सिट्यूट्स, ऐसी कमोडिटीज जिनमें कोई जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट्स है ही नहीं, जैसे सॉल्ट, तो उसके लिए डिमांड विल बी इन इलास्टिक. तो उसका डिमांड जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे. ठीक है, so what it is telling you, availability of substitutes more elastic for the more substitutes available in the market and inelastic for no substitutes available in the market. Then third one is number of uses. How many times we are making use of one particular good. अगर किसी चीज़ को हम सिंगल यूज़ कर रहे हैं ना, सिंगल यूज गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड. एक ही बार यूज़ करना है उसका, इसके लिए लेस इलास्टिक डिमांड है. और अगर मल्टी यूज गुड्स हैं तो यू विल हैव मोर इलास्टिक डिमांड. ठीक है, आप इस तरह से कैटेगराइज करके ये लर्न कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, मल्टी यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए उसका डिमांड क्या है, मोर इलास्टिक है. और किसी को हम सिंगल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ हैविंग अ लेस इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट वन इज दी हैबिट्स. Next factor which influence elasticity is the habits. Habits make demand for certain goods relatively inelastic. मतलब you are so habituated that आप उसके बगैर जी ही नहीं सकते. Like for a chain consumer of a cigarette, who is a chain smoker, like बार बार उसको चाहिए ही चाहिए. Like tobacco वगैरह खाने वाले. Okay, then people consuming tea. Okay, so it's like उनके लिए जो डिमांड है it is going to be relatively inelastic. Such type of habits, okay, that creates relatively inelastic demand in an economy. For example, addicted goods, drugs, etc. Then durability, कितने दिन तक, कितने साल तक आपका जो commodity है वो यूज हो सकता है. The demand for durable goods is relatively elastic. Okay, for example, furniture, washing machine, etc. This you can buy once इन अ फ्यू ईयर्स. लाइक आपको लेकर बार बार, लाइक आज लिया है अगले हफ्ते फिर चेंज करोगे, नथिंग एज सच. ठीक है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिंस इट इज़ अ ड्यूरेबल कमोडिटी. ठीक है, काफ़ी साल तक यूज़ कर सकते हो. इसके लिए उसका डिमांड कैसे होगा, रिलेटिवली इलास्टिक. एंड देन डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स, जो एक दो दिन में ही ख़राब हो जाते हैं, उसका डिमांड हमेशा इनइलास्टिक रहता है. फॉर एग्जांपल मिल्क एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए इनइलास्टिक डिमांड.
और जो काफ़ी दिन तक चलते हैं उनके लिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. Then we have sixth factor influencing elasticity of demand is complementary goods. The demand for a commodity which is used in conjunction. Complementary मतलब हम दो चीज़ एक साथ में यूज़ कर रहे हैं. Conjunction with other commodities to satisfy a single want. It is relatively inelastic. For example, a fall in the price of a mobile handsets may lead to rise in the demand for SIM cards. Isn't it? जैसे ही आपको पता चलेगा कि मोबाइल सेट्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एट द चीप रेट, देन बहुत लोग उसको खरीदेंगे और साइड बाय साइड क्या होगा, उसको ऑब्वियसली यूज़ करने के लिए सिम कार्ड की ज़रूरत होगी, तो सिम कार्ड का डिमांड बढ़ जाएगा. तो क्या है इसमें, यहाँ पर डिमांड क्या होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक. देन income of a consumer. Seventh factor influencing elasticity is income of a consumer. Demand for goods is usually inelastic if the consumer has high income. है ना, ज़्यादा पैसा है तो जब भी उसको मन चाहे तब वो खरीद सकता है. द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइस. सो इट डिपेंड्स कि किस तरह का इनकम जो है कंज्यूमर अर्न कर रहा है, बहुत ज़्यादा या फिर मिडिल इनकम अर्नर है या लोअर इनकम अर्नर है. डिपेंडिंग ऑन दैट उनका डिमांड पैटर्न फ्लक्चुएट होता है और उसी तरह से इनकम जो इलास्टिसिटी जो elasticity of demand becomes inelastic. Okay. Next factor which influences elasticity of demand is urgency of needs. Urgency of needs. Goods which are urgently needed will have relatively inelastic demand. जो बहुत most urgent need है उसकी demand क्या होगी, relatively inelastic. For example, medicines, okay. Then luxury goods which are less urgent, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी आप इन फ्यूचर लेना चाहें आप उसको ले सकते हो, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ओके. Then the last factor which affects elasticity of demand is or influences elasticity of demand is the time period. Elasticity of demand is always related to period of time. Elasticity is always related to period of time. It varies with the length of time period. Generally speaking, longer the duration of a period, greater will be the elasticity of demand. ठीक है, longer the duration of a period, greater will be the elasticity of demand and vice versa. तो जितना long होगा उतना elasticity ज़्यादा बढ़ेगी, जितना short होगा उतना elasticity कम होगी. This is because a consumer can change the consumption habits in the long run in favor of cheaper substitutes of the commodities. Okay, so they can change it. आगे चल कर के पता चलता है कंज्यूमर को, आज जो चीज़ वो हाई प्राइस में यूज़ कर रहा है, आगे चल कर पता चलता है कि यही चीज़ मुझे कम दाम में कहीं और मिलेगी, तो he can switch his consumption pattern from highly priced commodity to the lower priced commodities. So what your with this 9 points factors influencing elasticity of demand is over. This usually comes for 4 marks and sometimes it comes under 8 marks as well. तो आपको क्या करना है कि अपने elasticity of demand, if they'll ask you about factors influencing the elasticity of demand, then you have to write what is elasticity of demand. उसके बाद में nature, all the factors that are affecting the or influencing the elasticity of demand, या सारे के सारे 9 you have to write down either in the form of a flow chart जैसे आप इस तरह का बनाते हो, either in this form you can make it or in this form you can make it. फ्लो चार्ट बनाने के बाद में अगर ये 4 मार्क्स के लिए आ रहा है तो यू कैन एटलीस्ट एलाबोरेट 4 to 5 पॉइंट्स आउट ऑफ 9, और अगर ये 8 मार्क्स के लिए आ रहा है तो आपको पूरे 9 पॉइंट्स जो है वो पूरे लिखने होंगे. This is another last topic of the chapter, that is importance of elasticity of demand. Okay, this is again comes for 4 marks. ऑलराइट, डायरेक्ट आंसर आएगा या फिर आपको आएगा कि देर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डू यू अग्री विद इट. दो टाइप में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू किस किस को, प्रोड्यूसर, फार्मर्स, वर्कर्स एंड दी गवर्नमेंट. किस किस को है इम्पोर्टेंस इसका, प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट.
Lord Keynes considered this concept to be the most important contribution of Alfred Marshall. ठीक है, लॉर्ड केन्स कहते हैं कि ये जो चीज़ है अल्फ्रेड मार्शल ने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. Significance of the concept becomes clear from the following applications. First one is importance to a producer. Every producer has to decide the price of his product, ठीक है, at which he has to sell it. ज़्यादा या कम प्रोड्यूसर डिसाइड करता है मुझे अपना प्रोडक्ट, अपनी कमोडिटी जो है, अपनी सर्विस जो है, कितने दाम में बेचनी है इन द मार्केट. फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो वो कैसे डिसाइड करता है? प्रोड्यूसर जो है अपना प्राइस फिक्स करता है बाय ऑब्जर्विंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट. इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, अगर उसके प्रोडक्ट के लिए डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो व्हाट ही विल डू, ही विल फिक्स अप अ हायर प्राइस. यानी वो देख रहा है कि मेरी कमोडिटी, मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेगा, ही विल फिक्स अप अ हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा. और अगर वो देखता है कि इफ इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक, तो क्या करेगा, उसको कम कर देगा. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो यूजफुल टू अ मोनोपोलिस्ट टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मोनोपोलिस्ट जो है, पुलिस जो है, मे बी अ डॉक्टर, प्रैक्टिस MBBS डॉक्टर, अगर वो किसी म्यूनसिपल हॉस्पिटल में या फिर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में जा कर के अपना सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर ही विल चार्ज नथिंग, या फिर एट द लीस्ट. बट अगर वो अपनी कंसल्टिंग कर रहे हैं, कहीं जा कर के किसी और हॉस्पिटल में जा कर के कंसल्टिंग कर रहे हैं, तो दे विल चार्ज यू हायर. ओके, तो मोनोपोलिस्ट जो है, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल. इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू द मोनोपोलिस्ट टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. Second importance of elasticity is with respect to the government. Elasticity of demand is important to the government. How? Government का काम क्या है? टैक्सेशन पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज जो है उसको इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, तो टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हियर अगेन गवर्नमेंट ऑब्जर्व्स कि किस तरह का कंजम्पशन पैटर्न जो है पूरे इकोनॉमी में मोर प्रेवलेंट है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू विच पर्टिकुलर कमोडिटी, विच पर्टिकुलर सर्विस. तो दे विल डिसाइड कि वेदर वी शुड increase the taxes or reduce the taxes depending on elasticity of demand for that particular product and for that particular services. Those commodities whose demand is relatively inelastic, it will be taxed more. जो inelastic है उसके लिए टैक्स बढ़ाया जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट द डिमांड एंड मच एंड वाइस वर्सा. ठीक है, इट विल नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स मच एंड वाइस वर्सा. और अगर रिलेटिवली इलास्टिक है तो दे विल टैक्स लेस फॉर दैट. ठीक है, थर्ड फैक्टर और थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ द इलास्टिसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर प्राइसिंग. हमारे जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एंटरप्रेन्योर को छोड़कर यहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर तो प्रोड्यूसर है ही, तो प्रोड्यूसर खुद ही डिसाइड करता है मुझे कहाँ कितना रेंट देना है, लेबर को कितना देना है, कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देना है. तो this is how elasticity will help him. Elasticity is helping out the entrepreneur in fixing the factor pricing. The concept of elasticity of demand is useful in determination of factor prices. The factors of production for which demand is relatively inelastic. देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, इनइलास्टिक के लिए हर चीज़ ज़्यादा होती है और इलास्टिक के लिए हर चीज़ कम होती है. कैन कमांड, ओके, which demand is relatively inelastic can command a higher price as compared to those having elastic demand. ठीक है, for example, workers can ask for higher wages if the demand for the product produced by them is relatively inelastic. ठीक है ना, तो इन अ कंपनी वर्कर्स इवन हैव अ राइट, नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर तो फिक्स करता ही है वेजेस, लेकिन वर्कर्स भी अगर देखते हैं कि हमारी प्रोड्यूस की हुई कमोडिटी जो है इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक, उसका डिमांड जो है रिलेटिवली इनइलास्टिक है इन द मार्केट, तो वाई शुडंट वी अर्न मोर.
फॉर व्हाट वी आर वर्किंग, हमारा वेज रेट, हमारी सैलरीज बढ़नी चाहिए. ओके, देन फोर्थ वन इज इम्पोर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड. The concept of elasticity of demand is useful to determine terms and conditions in foreign trade. कहाँ पर कितना टैक्स देना है, कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, सब कुछ डिसाइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. ठीक है, देखिए ध्यान से, बार बार ये टर्म आता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, कैन रेज यानी बढ़ा सकते हैं देयर प्राइसेस. For example, Organization of Petroleum Exporting Countries, that is OPEC, have increased the price of oil several times. तो OPEC जो है, उन लोगों ने बार बार पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए हैं. The concept is also useful in formulating export and import policy of a country. ठीक है, तो हमारी क्या चीज़ इंपोर्ट हो रही है और क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, कितना रिलेटिवली इलास्टिक है, कितना रिलेटिवली इनइलास्टिक है, डिपेंडिंग ऑन दैट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी फिक्स की जाती है. देन पब्लिक यूटिलिटीज. इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवेज, है ना, हम लोग काफ़ी लोग जो हैं रेलवे से कम्यूट करते हैं, तो विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड. आप देखें कि ओवर क्राउडेड, एक्सट्रीमली ओवर क्राउडेड, द गवर्नमेंट कैन ईदर सब्सिडाइज करेगा या फिर नेशनलाइज करेगा देम टू अवॉइड कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन. कम रेट करेगा या फिर ऐसा रेट रहेगा जो पूरी कंट्री में सेम चले. ओके, सो दिस इज हाउ पब्लिक यूटिलिटीज भी आपको हेल्प, पब्लिक यूटिलिटीज में भी elasticity of demand is helpful. The last part or the last importance of elasticity is with respect to proportion of expenditure. हम कितना spend कर रहे हैं. If the proportion of expenditure in a person's income is small, अगर हम out of our salary बहुत कम जो है expenditures कर रहे हैं, the demand for the product is relatively inelastic. मतलब वो सोच समझ कर खर्च कर रहा है. For example, न्यूज़पेपर्स राइट, वो जो ऐसा है, मतलब जिसको हैबिट होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, वो उसे ज़रूर खरीदेगा. इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ लार्ज, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक. ठीक है, अगर कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है तो उसका डिमांड क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा. छोटी चीज़ यानी न्यूज़पेपर सबसे सस्ती चीज़ है, अगर वो खरीद रहा है तो उसके लिए रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा, और अगर कोई महंगी चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए रिलेटिवली इलास्टिक होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द लेसन 3B. ऑलराइट, 3B, elasticity of demand, and this is the last topic which I have covered just now. With this, your chapter is over. So if you want to score good marks in economics, please focus on chapter number 3A and 3B very well, so that you can score better marks. And especially the activity based questions which are there at the end of the textbook, या फिर थ्रू आउट द लेसन आप देख रहे हो कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन, कोई टेबल वाला क्वेश्चन, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके. ओके, सो विद दिस माय लेसन इज ओवर. दिस इज द लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 3B, एंड वेरी सून आई विल बी पोस्टिंग चैप्टर नंबर 4 का videos to you all. Do like, share and subscribe our channel और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए.